Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. As you all know that we were discussing transport in plants, and in that we have discussed already about the transport of water in plants. In today's video I am going to discuss with you the last two topics of your chapter, transport of minerals and ions and translocation of organic solute, or we can call it food. Okay, let's start with the transport of minerals, transport or uptake of minerals. So first of all, like water, मिनरल्स को भी क्या है, अपटेक करना पड़ेगा कहीं ना कहीं से. और मिनरल्स कहाँ डिजॉल्व रहते हैं? मिनरल रहते हैं सॉइल में. तो लाइक वाटर, मिनरल्स आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल इन डिजॉल्व फॉर्म. ओके, तो जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड आइदर पैसिवली और एक्टिवली. इन द सेम वे मिनरल्स और आयंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स आइदर पैसिवली और एक्टिवली. पैसिवली एब्जॉर्प्शन जो होता है मिनरल्स और आयंस का, इट हैज अ वेरी माइनर रोल. व्हाई? बिकॉज inside the cell, inside the root cells, the cytoplasm is hypertonic, means it is already contain a higher concentration of minerals and ions. So what is the situation? We have to put an energy in the system to transport the minerals or ions against their concentration gradient. I discussed it in my previous videos. What is active transport? So minerals and ions are basically actively transported across the root cells, and this process involves consumption of ATP. Clear? By the active transport, now minerals and ions are come inside the cell, and when they come inside the cell, they will create a water potential. Why? Because the cell cytoplasm become hypertonic, its water potential decreases, and it will drag water towards itself from the soil. Water will enter into the soil, water will enter into the cell from the soil and reach up to the endodermis. I discussed it earlier. आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ द वाटर रीच अप टू द एंडोडर्मिस. नाउ एट एंडोडर्मिस what will happen? I told you that the endodermis has Casparian strips, and these are impervious for water. The membrane of endodermal cell contain some transport proteins. These transport proteins act as a barrier or act as a control point. For what? They allow some useful minerals or ions to pass through it and block the passage of others. Clear? तो क्या हुआ, एंडोडर्मल सेल्स के पास जब पहुंचे, नियर द एंडोडर्मल सेल्स, मिनरल्स और आयंस आ रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स जो होती हैं, जो सिलेक्टेड मिनरल्स और आयंस हैं, उनको एक्टिवली अपने अंदर पास होने देती हैं और बाकियों को वहीं पर स्टॉप कर देती है. नाउ वंस इनसाइड द एंडोडर्मल सेल्स, दे विल नॉट रिटर्न बैक. व्हाई? बिकॉज द सेल वॉल इज impervious because of the deposition of suberin on the endodermal cell wall. So what will happen? Now once inside the endodermal cell, they have to move forward, not backward. तो minerals और ions अब कहाँ पहुंच जाएंगे? Through the endodermal cells, they will enter into the xylem. Clear? Like water, they will enter into the xylem cells, xylem tracheids and vessels. Now once they reach to the xylem of the root, they are transported in upside direction with the help of transpirational pull as well as the root pressure, as I told you earlier. बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है जैसे कि वाटर अपसाइड ट्रांसपोर्ट होता है, along with the water minerals and ions भी अपसाइड ट्रांसपोर्ट होते हैं. बट क्वेश्चन इज, वाटर का ट्रांसपोर्ट तो लीव्स तक हो रहा है, मिनरल्स कहाँ जाएंगे? ठीक है, मिनरल्स की जरूरत लीव्स में है, बट उसके अलावा भी और जगह पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है. तो देयर ट्रांसपोर्टेशन अकर टुवर्ड्स द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट. ग्रोइंग रीजन्स क्या क्या हैं? एपिकल मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम, young leaves, developing flowers,
fruits and seeds. These are the locations where transport of minerals and ions occur. At these sites, what will happen? The cells of these areas again contain some transporter proteins that allow the movement of ions or molecules from the xylem towards their destination cells. Okay. So in this way, the minerals and ions reached up to their destination or their consumption site. Clear? And one exception is there, जो प्लांट के ओल्डर पार्ट होते हैं. ओल्डर सेनेसिंग पार्ट मीन्स जो डिके हो रहा है, जो डेथ हो रही है जिन पार्ट्स की, मिनरल्स और आयंस वहां पर भी रहते हैं. तो जब ओल्डर पार्ट डिके हो रहा होता है तो ये अपने मिनरल्स और आयंस को रीमोबिलाइज करवा देता है टुवर्ड्स द यंगर लीव्स और डेवलपिंग पार्ट्स, जो नियरेस्ट इनके यंगर लीव्स और डेवलपिंग पार्ट्स होंगे उसकी तरफ ये अपने आयंस को मोबिलाइज करवा देते हैं. और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट होते हैं? स्पेशली पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस. बेसिकली ये 4 टाइप के मिनरल्स जो हैं वो रिमोबिलाइज हो जाते हैं ओल्डर पार्ट से, ओल्डर सेनेसिंग पार्ट से यंगर लीव्स या डेवलपिंग पार्ट की तरफ. क्लियर? इसके अलावा ओल्डर पार्ट्स में स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है लाइक कैल्शियम. ठीक है, तो जो कैल्शियम होता है ये डज नॉट रिमोबिलाइज. जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं बेसिकली दे डज नॉट रिमोबिलाइज. क्लियर? तो इन दिस वे मिनरल्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट हो जाता है टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन साइट्स. एंड हाउ आई विल प्रूव दैट कि ये मिनरल्स और आयंस का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जाइलम के थ्रू होता है. तो अगेन यहाँ पर क्या हुआ है, जो जाइलम का एक्सुडेट था, मतलब तो जाइलम सैप था, जाइलम सैप, जब उसका एनालिसिस किया गया उसमें उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई किया गया तो उनको पता चला कि इसमें नाइट्रोजन का कंपोनेंट भी है, इसमें फॉस्फोरस और सल्फर भी है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन. ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में भी होती है और ऑर्गेनिक फॉर्म में भी होती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स. और फॉस्फोरस और सल्फर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. इसके अलावा ये पता चला कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम आल्सो. क्लियर? So this is all about the uptake and transport of minerals and ions in case of plants. I hope आपको समझ में आया होगा. Now I am moving towards the next topic of your syllabus, that is translocation of food. And we all know that food is translocated by phloem. Hence it is called phloem transport. ठीक है. नाउ एक चीज यहाँ पर क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसलोकेशन. एक्चुअली ट्रांसपोर्ट टर्म इज यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट. शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट जहाँ पर फिजिकल प्रोसेसेस ही इन्वॉल्व हो रही हैं और उनके थ्रू मूवमेंट हो रहा है, लाइक डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो ऐसी प्रोसेसेस का इन्वॉल्वमेंट है और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए मूवमेंट है, तब हम उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसपोर्ट. लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट जो होते हैं जहां पर फिजिकल प्रोसेसेस तो लग रही हैं लेकिन साथ में वॉस्कुलर टिश्यूज का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जाइलम और फ्लोएम का इन्वॉल्वमेंट है इन द मूवमेंट, तब हम उस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन. तो बेसिकली वाटर का ट्रांसपोर्ट जो हमने पढ़ा और अब हम फूड का जो पढ़ने वाले हैं वाया जाइलम एंड फ्लोएम रिस्पेक्टिवली, ये एक्चुअली कहलाता है ट्रांसलोकेशन, ना कि ट्रांसपोर्ट. क्लियर? तो now we will discuss what is phloem transport. I told you कि phloem transport क्या है. phloem से food का translocation होता है. food क्या है? in case of plant, first of all we will discuss what is food. food या organic solute, that is glucose. कैसे बनता है ये? इसकी site of synthesis होती है leaves. leaves ये green parts of the plant that contain chlorophyll, and because of this chlorophyll these parts perform photosynthesis, and by the process of photosynthesis they prepare food. Now the product of photosynthesis, the end product of photosynthesis is glucose, but
glucose is not translocated as such. It has to convert in sucrose before translocation. तो ट्रांसलोकेटेड फॉर्म ऑफ फूड इज क्या है? सुक्रोज. सुक्रोज जब अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचता है या तो ये कंज्यूम हो जाएगा या ये स्टोर हो जाएगा. स्टोर किस फॉर्म में होता है? इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इट मे बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और सुक्रोज ऑल्सो. आई विल डिस्कस इट कि दोनों फॉर्म में कैसे स्टोरेज हो रहा है. ठीक है, तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड अगर आपसे पूछा जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन इज स्टार्च. मोस्टली ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. नाउ अब बात आती है कि मूवमेंट कैसे होता है. जैसे कि बताया था वाटर के केस में साइट ऑफ प्रोडक्शन और साइट ऑफ कंजम्पशन दो चीजें होती हैं. साइट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है. ये दीज आर द एरियाज ऑफ हायर प्रेशर. और साइट ऑफ कंजम्पशन क्या है? एरिया ऑफ लोअर प्रेशर. तो ये जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना, दिस हायर और लोअर प्रेशर का, इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट होता है या ट्रांसलोकेशन होता है या ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टुवर्ड्स द साइट ऑफ कंजम्पशन. और ये हाइपोथेसिस कहलाती है मास फ्लो हाइपोथेसिस. मास में इसका फ्लो होता है, एक पार्टिकल बाय पार्टिकल मूवमेंट नहीं होगा, बल्क मूवमेंट होता है. क्लियर? तो एक हो गया सोर्स जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, एक हो गया सिंक जहां पे कंजम्पशन हो रहा है. अगर हम फूड की बात करें, फूड के ट्रांसलोकेशन की बात करें, तो सोर्स क्या है? सोर्स है हमारे लीव्स. लीव्स में भी क्या? मीजोफिल सेल्स ऑफ लीव्स. दीज आर द मेन सोर्स वेयर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज अकर. क्लियर? और अगर मैं सिंक की बात करूं तो व्हाट आर द सिंक साइट्स? व्हाट आर द साइट ऑफ कंजम्पशन वी कैन से. तो साइट ऑफ कंजम्पशन की अगर हम बात करें तो साइट ऑफ कंजम्पशन दो टाइप के हो सकते हैं इन केस ऑफ प्लांट्स. दैट इज एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ एंड एरिया ऑफ स्टोरेज. दोनों ही काम हो सकते हैं ना. प्लांट में अगर डेवलपमेंट हो रहा है तो वहां पे भी जरूरत है, और अगर स्टोरेज हो रहा है तो वहां पर भी जरूरत है. तो कंजम्पशन साइट्स दो हैं हमारी. अब एक्टिव ग्रोथ की साइट्स अगेन कौन सी हैं? अभी पहले भी डिस्कस किया मैंने. एपिकल मेरिस्टीम, लेटरल मेरिस्टीम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स, यंग शूट्स, ये सारे हैं एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ. ठीक है. और एरिया ऑफ स्टोरेज क्या है? एरिया ऑफ स्टोरेज सोर्स भी हो सकता है और सिंक भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं. इट विल डिपेंड्स अपॉन द प्लांट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड द सीजन. ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट कि सोर्स है या सिंक है, कहाँ पे स्टोरेज हो रहा है. इट विल डिपेंडेंट अपॉन plant stage of development and the season. Clear? Now food का जो ट्रांसलोकेशन होता है from the source to the sink. सिंक साइट कौन सी होगी? जो भी उस सोर्स के नियरेस्ट होगी. ऑब्वियसली जो नियरेस्ट साइट है वहां पर पहले ट्रांसपोर्ट होगा. तो इन केस ऑफ एक टॉल ट्री की अगर मैं बात करूं, एक ट्री में क्या है, ऊपर की तरफ कैनोपी होती है ना, लाइक these are the roots, और ऊपर क्या है. ठीक है. तो यहां पर क्या है? हाईएस्ट लीव्स यहां पर है. these are the lowest leaves, और ये मिडिल में इंटरमीडिएट लीव्स. क्लियर? तो अब क्या होगा? जो हाईएस्ट लीव है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगी शूट की टिप पर, जो भी ग्रोइंग टिप्स हैं ब्रांचेस की यहां पर नियरेस्ट. जो लोअर लीव्स हैं वो रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट करेंगी फूड को, और जो इंटरमीडिएट लीव्स हैं उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन मे बी अपवर्ड और मे बी डाउनवर्ड. ठीक है. डिपेंड्स अपॉन देयर कंडीशन. इंटरमीडिएट पोजीशन भी बहुत बड़ी पोजीशन है कहां पर वो एग्जिस्ट कर रही है. ठीक है. तो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू से दैट ट्रांसलोकेशन बाय फ्लोएम इज बाई डायरेक्शनल. इट मे बी अपवर्ड और मे बी डाउनवर्ड. बट ट्रांसलोकेशन बाय जाइलम जो हमने अभी पढ़ा था ये यूनिडायरेक्शनल था. ये सिर्फ अपवर्ड होता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू लीव्स. क्लियर? तो फ्लोएम से जो ट्रांसलोकेशन है वो बाई डायरेक्शनल होता है और जाइलम से जो ट्रांसलोकेशन है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. क्लियर टू यू ऑल? तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमारा अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो कंजम्पशन साइट्स क्या है, सिंक क्या है और सोर्स क्या है. नाउ कम टू द मैकेनिज्म पार्ट.
अब क्या होगा, जो हम मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, अगर कैसे हो रही है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, जो मैंने बताया मास फ्लो हाइपोथेसिस है, प्रेशर फ्लो मॉडल या मास फ्लो हाइपोथेसिस, आई हैव डिस्कस्ड इट अर्लियर. It was proposed by Munch and elaborated by Kraft. The two scientists के नेम है, just learn it. तो जो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है दोनों जगह वर्क करेगी, सोर्स पे भी और सिंक पे भी. सोर्स पे कैसे, अपलोडिंग होगी फूड की एट सोर्स. सोर्स क्या है यहाँ पर, फ्रॉम द मीजोफिल सेल्स टू द फ्लोएम ऑफ द लीव्स, क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है, मीजोफिल सेल्स में. इसको लोड होना पड़ेगा फ्लोएम की, लीव्स की फ्लोएम में, लीव्स के वास्कुलर बंडल में, अदरवाइज इट विल नॉट बी ट्रांसलोकेटेड. तो सबसे पहले क्या होगी, अपलोडिंग होगी फूड की एट द सोर्स साइट, एंड इन द सेम वे फ्लोएम से ये ट्रांसलोकेट होके जब नीचे आ रहा है या कहीं किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, अपने डेस्टिनेशन पर जब पहुंचेगा तो वो रहेगा तो फ्लोएम में ही, उसको अपने डेस्टिनेशन साइट पर पहुंचने के लिए फ्लोएम से बाहर निकलना पड़ेगा. दैट इज द अनलोडिंग एट सिंक, यानी कि फ्रॉम फ्लोएम कहाँ जाएगा, ये सेल्स एट द कंजम्पशन साइट्स. क्लियर. तो जो होल मैकेनिज्म है एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, अपलोडिंग एट द सोर्स एंड अनलोडिंग एट द सिंक. नाउ डिस्कस, आई विल डिस्कस फर्स्ट द अपलोडिंग एट सोर्स. आप जस्ट इमेजिन करो लीव्स हैं, ठीक है, एंड फ्लोएम सेल्स हैं लीव्स में. लीव्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा रिकॉल रखना अपने माइंड में. मीजोफिल से, अब देखो लीव्स हैं, लीव्स की मीजोफिल सेल्स में सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई. क्लियर, सिंपल. लीव्स में, लीव्स की मीजोफिल सेल्स में क्या बन रहा है, ग्लूकोज. एज सून एज इट विल फॉर्म इट विल कन्वर्टेड इनटू सुक्रोज, क्योंकि इसको ट्रांसलोकेट होना है. तो मीजोफिल सेल में सुक्रोज बना, जिस एक सेल को अज्यूम करो कंसंट्रेशन क्या होगी सुक्रोज की, हायर हो जाएगी, हाइपरटोनिक हो जाएगा साइटोप्लाज्म. तो सुक्रोज क्या है, अपनी नियर बाय सेल में डिफ्यूज हो जाएगा. डिफ्यूज होते 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 ये कहाँ पहुंचेगा, कंपेनियन सेल्स के पास. बट कंपेनियन सेल्स में क्या सिचुएशन है कि दे ऑलरेडी कंटेन हायर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, सॉरी सुक्रोज. ठीक है, तो सुक्रोज नियर बाय सेल से कंपेनियन सेल्स में कैसे एंटर करेगा, ये कुछ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है इस कंपेनियन सेल्स के मेम्ब्रेन में. ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जिनको हम पंप्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, सुक्रोज को ट्रांसपोर्ट कराना है अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अपहिल मूवमेंट कराना है अगेंस्ट, इट इज एन एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस. तो ये जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनको हम कहते हैं पंप बेसिकली. क्यों, क्योंकि ये एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, तभी ये ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं. और यहाँ पर जो पंप है उसका नाम है प्रोटॉन सुक्रोज सिम्पोर्टर पंप. ठीक है, कंपेनियन सेल्स के मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, प्रोटॉन सुक्रोज सिम्पोर्टर पंप. व्हाट डज इट मीन, सिम्पोर्टर अगर आप रिकॉल करो, सिम्पोर्ट मतलब दो मॉलिक्यूल्स एक साथ एक डायरेक्शन में मूव होंगे थ्रू दिस प्रोटीन, थ्रू दिस ट्रांसपोर्टर. तो वो दो मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, प्रोटॉन और सुक्रोज. बेसिकली प्रोटॉन अपने साथ सुक्रोज को बाइंड करा के इसके साथ ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से होता हुआ कंपेनियन सेल्स में एंटर करता है, और इस प्रोसेस में ये एटीपी एनर्जी को यूटिलाइज करता है. क्लियर. तो ये सिम्पोर्टर पंप्स के थ्रू सुक्रोज कहाँ एक्यूमुलेट हुआ, कंपेनियन सेल्स में. अब कंपेनियन सेल्स किससे जुड़े हुए हैं, सी ट्यूब एलिमेंट से. तो बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, बाय सिंपल डिफ्यूजन ये जो सुक्रोज है कंपेनियन सेल से कहाँ एंटर कर जाएगा, सी ट्यूब एलिमेंट में. क्यों कर जाएगा, क्योंकि सी ट्यूब एलिमेंट से में एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है, फूड ट्रांसलोकेट होता जा रहा है, ये वाइप आउट होता जा रहा है, अपने डेस्टिनेशन पे जाता चला जा रहा है. तो यहाँ पर अभी स्पेस है, तो डिफ्यूजन के थ्रू फूड यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा. और सी ट्यूब एलिमेंट्स की एक खासियत होती है कि दे कंटेन रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट. व्हाई दिस रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अलाउ मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट इजिली. अगर ज्यादा हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट तो क्या होगा, यहाँ पर रश हो जाएगा, यहाँ पर हौच-पौच हो जाएगी और फूड को ट्रांसलोकेट होने में टाइम लगेगा. तो ये एक इनकी स्पेशलिटी होती है कि दे हैव रिड्यूस्ड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट सो दैट दे अलाउ द इजियर मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट. इन एडिशन दे कंटेन स्यूट प्लेट विद पोर्स, जिसके थ्रू फूड नियर जो एडजेसेंट स्यूट ट्यूब है उसमें एंटर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू
फूड कंपेनियन सेल से सी ट्यूब एलिमेंट में आया और यहाँ से ये क्या हुआ, अब आप देखो सी ट्यूब एलिमेंट में कैसे मूवमेंट हो रहा है, मास फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे ही शुगर यहाँ पे एक्यूमुलेट हुई, क्या होगा, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, इसका सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होते ही ये जो सी ट्यूब एलिमेंट है नियरेस्ट जाइलम सेल से वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर मूव कर जाएगा फ्रॉम द जाइलम टू द सी ट्यूब एलिमेंट। अब सी ट्यूब एलिमेंट में क्या है, फूड प्लस वाटर, नाउ वी कॉल इट फ्लोएम सैप। सिर्फ फूड नहीं है, ये डिसॉल्व फॉर्म में है, वाटर में डिसॉल्व हो गया है, ठीक है। जैसे ही वाटर यहाँ पर एंटर किया, वाटर की एंट्री से क्या होगा, प्रेशर पोटेंशियल बढ़ जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो जाएंगी, इनके साथ ही साथ वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होते ही क्या होगा, ये जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है ये बेसिकली मेन फोर्स है दैट ड्राइव्स द फ्लो ऑफ फ्लोएम सैप, यानी कि फूड प्लस वाटर टुवर्ड्स द सिंक। क्लियर? आई होप कि कुछ पिक्चर क्लियर हुई होगी। एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। लीव्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज डिफ्यूज होता होता अपने नियर बाय सेल्स से कहाँ पहुंचा, ये कंपेनियन सेल्स के पास। कंपेनियन सेल्स के मेम्ब्रेन में है ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन सुक्रोज सिम्पोर्टर पंप। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सुक्रोज को एक्टिवली पंप करवाते हैं इनसाइड द कंपेनियन सेल्स। वाई? क्योंकि कंपेनियन सेल्स में ऑलरेडी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज प्रेजेंट है। So once inside the companion cell, the sucrose will diffuse into the C tube element. Why? क्योंकि C tube element में जो मटेरियल है वो वाइप आउट होता जा रहा है, वो डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पर स्पेस है तो डिफ्यूजन के थ्रू शुगर यहाँ आ जाएगा, एक चैनल बना हुआ है। C tube एलिमेंट में क्या हो गया, शुगर के आने से सोल्यूट पोटेंशियल डिक्रीज होगा, वाटर नियरेस्ट जाइलम सेल से ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें आ जाएगा। तो वाटर की वजह से क्या होगा, एंट्री ऑफ वाटर विल कॉज इंक्रीज इन प्रेशर पोटेंशियल एंड टर्गर प्रेशर, both of will increase the water potential of the C tube cells. जैसे ही water potential increase हुआ, ये water potential इसको push करेगा lower water potential area की तरफ, यानी कि किसकी तरफ, सिंक की तरफ। Actually ये जो increase water potential होता है, this is the main driving force that push the flow of phloem sap towards the sink. Just recall my word push. Okay, clear? तो इन दिस वे आपके सोर्स साइट पर अपलोडिंग हो गई। नाउ द फ्लोएम यानी कि कंपेनियन सेल से सी ट्यूब एलिमेंट में फूड आ गया है, वाटर आ गया और अब ये मूव कर रहा है सिंक की तरफ। नाउ कम टू द सिंक साइड। अब सिंक साइड पर क्या होगा, ये सारी प्रोसेस जो अभी आपने समझी ये जस्ट रिवर्स हो जाएगी। तभी तो फूड जो है वो सी ट्यूब एलिमेंट्स को छोड़ करके अपने टारगेट सेल पर जाएगा। तो अनलोडिंग के टाइम पर क्या होगा, अनलोडिंग जो होती है, अब एक चीज यहाँ पर पहले समझ लो कि सिंक अनलोडिंग जो होती है वो दो मेथड्स के थ्रू हो सकती है, अगेन बाय डिफ्यूजन एंड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब आप कहोगे कि भाई ये दो मेथड क्यों लगा दिए, तो बाय डिफ्यूजन के थ्रू अनलोडिंग वहां पर होगी जहां पर जो आपके ग्रोइंग एक्टिव ग्रोइंग एरियाज हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर शुगर लगातार यूज होते चले जा रही है, वहां पर रिक्वायरमेंट है शुगर की। क्लियर? तो क्या होगा कि जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पर शुगर की कंसंट्रेशन कम है और हमारा जो फ्लोएम है उसमें शुगर बहुत ज्यादा है, शुगर डिफ्यूज हो जाएगी डेस्टिनेशन पर, फ्लोएम से निकल के अपने डेस्टिनेशन सेल्स पर चले जाएगी। यानी कि डिफ्यूजन की प्रोसेस कहां पर होगी, इफ कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज लोअर एट सिंक देन फ्लोएम। ठीक है? और दूसरी कंडीशन कहां पर डिफ्यूजन होगा, एरिया ऑफ स्टोरेज। अब आप कहोगे फिर कंफ्यूज कर दिया, एरिया ऑफ स्टोरेज पे कैसे हो जाएगा, तो मैं उन स्टोरेज एरियाज की यहाँ पर बात कर रही हूँ जहां पर कि शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और फिर स्टोर होता है। ठीक है? देखो मैंने बोला था शुगर या तो शुगर के फॉर्म में स्टोर होगा या शुगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। बेसिकली जो प्लांट्स में, मैं स्पेशली नीट के स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि मेन स्टोरेज प्रोडक्ट होता है स्टार्च, बट कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहां पर शुगर के फॉर्म में स्टोरेज होती है। तो यहाँ पर आपके जो स्टोरेज एरिया है वो दो हैं, एक तो वो जहाँ पर शुगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो रही है और दूसरा वो जहाँ पर शुगर जो है शुगर के ही फॉर्म में स्टोर हो रही है। दोनों ही केसेस में आप देखो सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पर स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होने का मतलब क्या है, स्टार्च ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है, डिसॉल्व फॉर्म में नहीं होता ना। तो क्या होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में है, तो जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो हाइपोटोनिक हो जाता है। तो यहाँ पर शुगर
डिफ्यूजन के थ्रू आएगी, डिफ्यूजन के थ्रू एंटर करेगी और अंदर आके फिर स्टार्च में कन्वर्ट होते चले जाएगी। समझ में आ रहा है? और जहां पर शुगर के फॉर्म में स्टोर हो रही है तो ऑब्वियसली हमारा जो डेस्टिनेशन साइट है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज मोर एट सिंक साइट देन द फ्लोएम। ऑलरेडी वहां पर शुगर है और फिर फ्लोएम से शुगर आ रही है, तो ये अगेन हमें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमको मूव कराना है, तो क्या मेथड यूज होएगा? बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इज हाई एट द सिंक देन फ्लोएम, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द फ्लोएम टुवर्ड्स द सिंक साइड। दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो पहला केस हम पढ़ते हैं अनलोडिंग का, जहां पर फ्लोएम, सिंक का जो फ्लोएम है वहां से शुगर डिफ्यूज हो रही है, एरिया ऑफ एक्टिव ग्रोथ और एरिया स्टोरेज ऑफ स्टार्च, दो तरह के एरिया की मैं बात कर रही हूँ। क्या होगा यहां पर, आप जस्ट इमेजिन फ्लोएम है, फ्लोएम में शुगर की कंसंट्रेशन, मतलब सी ट्यूब सेल्स है, वहां पे शुगर बहुत ज्यादा है। ज्यादा का मतलब क्या होता है? इसका सॉल्यूट पोटेंशियल कम है, इसका प्रेशर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, इसका वाटर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। तो क्या होगा, शुगर जो है अपने शुगर की कंसंट्रेशन हायर है, यहाँ शुगर की कंसंट्रेशन कम है, यहाँ वाटर पोटेंशियल भी कम है। क्या होगा, वाटर शुगर जो है फ्लोएम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे ही फ्लोएम से शुगर निकल के यहाँ पर डिफ्यूज हुई, फ्लोएम में क्या हुआ, शुगर की कंसंट्रेशन डाउन हो गई, वाटर बच गया। तो वाटर जैसे जाइलम से एब्जॉर्ब हुआ था, ठीक वैसे ही निकलकर वापस जाइलम में चला जाएगा थ्रू ऑस्मोसिस। वाटर जो फ्लोएम में था, अभी शुगर तो यहाँ आ गई एट द डेस्टिनेशन, तो जो वाटर बचा फ्लोएम में वो ऑस्मोसिस के थ्रू, एक्सॉस्मोसिस यू कैन से, इट विल गो इनटू द जाइलम। जैसे ही वाटर बाहर निकला, प्रेशर पोटेंशियल घट गया, टर्गर प्रेशर भी घट गया, है ना, और मीनवाइल जो वाटर पोटेंशियल था वो भी कम हो गया, वाटर निकल गया। ये अगेन आप देखो, यही डिक्रीज वाटर पोटेंशियल, इट मेंटेन्स द डायरेक्शन ऑफ बल्क फ्लो और मास फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक, क्योंकि यहाँ वाटर पोटेंशियल कम हो गया और इसके जस्ट जो नियर बाय सी ट्यूब होगी वहां पर वाटर पोटेंशियल हाई होगा, वो मास फ्लो कर देगा सब्सटेंस का टुवर्ड्स दिस लोअर वाटर पोटेंशियल साइड। ठीक है, तो इस तरीके से अनलोडिंग हो गई सिंक की साइड पर। क्लियर? दूसरा केस क्या है, हमारा स्टोरेज साइट, जहां पर शुगर ही स्टोर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अगेन फ्लोएम एट द सिंक, हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, और हमारा डेस्टिनेशन क्या है, एरिया ऑफ शुगर स्टोरेज, अगेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। अब यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है, जो शुगर स्टोरेज वाली साइट्स है ना, अगेन यहाँ पर पंप्स होंगे, जैसे कंपेनियन सेल्स में ऊपर पंप थे, यहाँ पर भी पंप्स हैं। कौन से पंप हैं? प्रोटॉन सुक्रोज एंटीपोर्टर्स। यू नो एंटीपोर्टर्स? एंटीपोर्टर्स वो टनल प्रोटीन्स होती हैं जो एक मॉलिक्यूल को मतलब दो मॉलिक्यूल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, एंटीपोर्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो प्रोटॉन थे वो, प्रोटॉन का मूवमेंट हो रहा है एरिया ऑफ स्टोरेज से फ्लोएम की तरफ, और शुगर का मूवमेंट हो रहा है इस तरफ। शुगर फ्लोएम से निकल के आपके डेस्टिनेशन सेल्स पर आ रही है और डेस्टिनेशन सेल से प्रोटॉन निकल के फ्लोएम में जा रहे हैं, एंटीपोर्ट हो रहा है। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज है कि कौन सा पंप है यहाँ पर, प्रोटॉन सुक्रोज एंटीपोर्टर पंप। ये कहां पर मिल रहा है, यहाँ की कंपेनियन सेल्स में, फ्लोएम की कंपेनियन सेल्स में, और वहां से निकल के ये शुगर कहाँ आ जा रही है, अपने डेस्टिनेशन पर। और फ्लोएम में क्या होगा, सेम वही प्रोसेस, शुगर के निकलते ही सॉल्यूट पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाइलम में चला गया फ्लोएम से निकल के, है ना, और जैसे ही वाटर निकला, इसका प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल सब डिक्रीज कर जाएगा, एंड दिस मेंटेन द डायरेक्शन ऑफ बल्क फ्लो फ्रॉम सोर्स टू सिंक। दिस डिक्रीज वाटर पोटेंशियल ये हेल्प करता है इस मास फ्लो में। क्यों? अगेन नियरेस्ट ट्यूब सेल जहां पर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है वो फ्लोएम से आपको मूव करवा देगा टुवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल साइड। तो इन दिस वे अनलोडिंग हो जाती है सिंक पर, और सिंक क्या है हमारा, स्टोरेज एरिया वेयर शुगर इज स्टोर्ड एज शुगर।
तो विद दिस टॉपिक मैकेनिज्म इज कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और शायद मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ आपको थोड़ा बहुत समझाने में कि कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वाटर का और फूड का। यहाँ पर एक मैंने समराइज फॉर्म में कुछ टेबल्स ही बनाई है, जस्ट हैव अ लुक। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर फ्लूइड मूवमेंट? अगर मैं जाइलम की बात करूं तो ड्राइविंग फोर्स क्या है? ट्रांसपिरेशनल पुल फ्रॉम लीव्स एंड कोहेजन एंड टेंशन ऑफ वाटर, ये पैसिव प्रोसेस है। और फ्लोएम की बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज फ्रॉम सोर्स टू फ्लोएम स्यूट्यूब एलिमेंट्स। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया एटीपी डिपेंडेंट है ड्राइविंग फोर्स। अगर मैं सेल्स की बात करूं यूज इन फ्लूइड मूवमेंट, जाइलम नॉन लिविंग वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रैकीड्स, और फ्लोएम में लिविंग स्यूट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स। क्लियर? प्रेशर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं, अगर जाइलम में तो प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द पुल फ्रॉम टॉप से उसको खींचा जाता है, ट्रांसपिरेशनल पुल लगता है। और फ्लोएम की अगर मैं बात करूं तो मैं अभी बोला पुश होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है प्रेशर पोटेंशियल ड्यू टू द पुश मूवमेंट फ्रॉम सोर्स। क्लियर? नाउ एट लास्ट द टॉपिक इज कि जैसे हमने जाइलम में प्रूफ किया था कि वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू होता है, हाउ विल यू प्रूव इट? इन द सेम वे नाउ एक लास्ट एक्सपेरिमेंट है, जनरली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये कि हाउ विल यू प्रूव दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट अकर्स वाया फ्लोएम। तो उसके लिए एक सिंपल गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया जाता है। क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, एक पॉटेड प्लांट लेते हैं, ठीक है, छोटा सा, इसमें सॉइल से कुछ सेंटीमीटर ऊपर की तरफ यहाँ पर जो बार्क है, बार्क वाला एरिया वो रिमूव कर देते हैं, सिर्फ जाइलम को इंटैक्ट छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से कट करके, और इसको हम कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं। तो होता क्या है, कुछ दिनों बाद जब हम देखते हैं तो ये जो आपने कट लगाया था अपर साइड पर एक स्वेलन एरिया सा बन जाता है, और उसमें हम देखते हैं कुछ एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप हो जाती हैं। तो ये स्वेलन एरिया क्यों बन रहा है? बेसिकली क्योंकि हमने यहाँ पर फ्लोएम को रिमूव कर रखा है इतने एरिया से। तो फूड जो भी बनता है दैट इज ट्रांसलोकेटेड बाय अ फ्लोएम, बट आगे फ्लोएम एब्सेंट है तो फूड यहाँ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसके साथ ही साथ वाटर तो इसे सॉइल से मिल ही रहा है थ्रू द जाइलम, है ना। तो यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट डेवलप होना शुरू हो जाती है। प्लांट जो होता है इस केस में इट विल नेवर डाई, क्योंकि इसको वाटर मिल रहा है, इसको फूड भी मिल रहा है, और इसमें एडवेंटिशियस रूट्स भी डेवलप हो चुकी हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि प्लांट डाई हो जाएगा, नो इट विल नॉट डाई। ठीक है, तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जो आपका होता है फूड, ये स्टॉप हो जाता है बिकॉज यहाँ पर फ्लोएम एब्सेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है दैट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड अकर्स वाया फ्लोएम। So with this experiment, I am going to close this chapter. I hope आपको समझ आया होगा. If you have any query, you can call me in the comment section. और इसको आप एक बार फिर से पढ़िए. In my later I will make a video based on some problems related to transport of water और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो नीट में फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं उन पर मैं एक वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगी आपको. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए इसको. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग. गुड बाय.